And one more thing which I think it's important to brief about the order the Deputy Commissioner has recently issued regarding one allotment. And I will request the Deputy Commissioner, because it is something done at the under rules. As I understand, as I went through his documents, I found that the allotment order itself mentioned that it will lapse after 1 year if the university doesn't come up. So he has done nothing. He has said that this clause 4, I will brief you, that clause 4 has operated, that's all. So clause 4 has operated, which was in the allotment order itself. The Deputy Commissioner of the time, when he issued the order, he kept a provision of itself lapsing, that if it doesn't happen, that order itself lapses. So he has not done any active action. He has only recognized that clause and said that it is already lapsed. So why are we continuing it? And then let this land now go to the LHDC now, back to the LHDC. I said that is the order. So there is nothing. This is only unique case in Ladakh. There is no other such case in Ladakh as I know the revenue. It has nothing to do with anything. The land of the people, the land which is with the people, whether it is their own ancestral land or whether the state land which is with them, it has nothing to do with it. None of the citizen of Ladakh who has any state land, I know, because here land is very, very, very rare commodity. The agricultural land is very rare commodity, but barren land is in plenty. So anybody who is sitting over a piece of barren land, we have no objection to that. Certainly I have clarified it 100 times that we have no objection in anybody sitting on the state land, because this is the only region where Maharaja gave the special permission to occupy state land without any ceiling. You could occupy even 120 canals, 1000 canals, something, if you do the Navtod, if you do the cultivation over it. But over a period of time, some people have even constructed houses on them. So be it. We have nothing against that, because if people don't construct land on their own state land, फिर कहाँ पे मकान बनाएंगे if they need it. और इसलिए हमने कॉमन लैंड रेगुलेशन एक्ट में चेंज किया. पहले 4 मरले था डीसी को अथॉरिटी, हमने उसको 10 मरले किया. हमने कहा 4 मरले में तो घर हो ही नहीं सकता. बन तो सकता है, 4 मरले में भी घर बनता है, ऐसा नहीं कि बनता नहीं है. लेकिन लोगों ने कहा कि हमारे पास जानवर भी होते हैं, तो हमने कहा ठीक है. ये बड़े डिस्कशन है, एक्सटेंसिव डिस्कशन हुई सबके साथ, सब स्टेक होल्डर के साथ. उन्होंने कहा सर 4 कनाल में तो चलो घर उतना सा हम समझ सकते हैं, 4 कनाल इज नॉट, इट इज 1000 स्क्वायर फुट, तो उसमें तो घर बन जाता है. लेकिन हमारे पास जानवर होते हैं, उसका बाड़ा बनाना होता है और थोड़ा आंगन चाहिए हमको, तो हमने इसको 10 कनाल कर दिया. मतलब 3000 स्क्वायर फुट के करीब, 2750 के करीब आधा कनाल कर दिया. तो आधा कनाल कर दिया, तो आधा कनाल तो वैसे भी डीसी साहब अलॉट कर सकते हैं लीगली. और जिन लोगों ने ये ऑक्युपाई किया है नवतोड़ लैंड, जो हमारी एलएचडीसीज ने टाइम पे अलॉटमेंट की है, वी रिकॉग्नाइज देम, वो इंटैक्ट हैं. जो एलएचडीसी की अलॉटमेंट लोगों को हुई है घर बनाने के लिए, वो इंटैक्ट है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा. इसलिए मैंने एक बार पहले भी कहा था कि हमने बाजाफ्ता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो एक कमिटी, वी हैव कॉन्स्टिट्यूटेड कमिटी अंडर ए वेरी सीनियर ऑफिसर, कि भाई आप ये जो चीजें हैं, लोगों में ये फियर ना जाए कि कहीं हमारी जमीन कोई वापस तो नहीं ले रहा. सवाल ही पैदा नहीं होता. जमीन तो वापस कैसे ली जा सकती है? जमीन तो वहीं रहती है. ये तो कागजों में एंट्री का इशू होता है. जमीन तो वहीं की वहीं रहती है, जिसके कब्जे में है. आज तक आपने देखा कि किसी का कब्जा हमने, जिसने घर बनाया हो उसका कब्जा रिमूव किया हो, या उसका घर को तबाही उसको किया हो, नोटिस पे डाला हो. तो घरों के लिए जो लोगों के पास जमीनें हैं, वो उनकी जमीनें हैं, एलएचडीसी ने उनको दी हैं, वो हमारे लिए वो लीगल है, उसमें कोई इशू नहीं है. ये एक यूनिक केस है जहां पे कि ऑर्डर में लिखा हुआ है कि अगर आप यूनिवर्सिटी नहीं बनाएंगे तो समझ लो ये लैप्स हो गया, डीम टू हैव बीन लैप्स. ऑर्डर में लिखा हुआ है, हमने कुछ नहीं किया. हम डीसी साहब कहते हैं मैंने तो ऑर्डर जो उसमें लिखा था उसको इंप्लीमेंट कर दिया और लैंड वापस एलएचडीसी को कर दी. अब इसमें तो कोई, फिर भी मैं इनको कहूंगा थोड़ा इसको एक्सप्लेन करें.
सर, जो रिसेंट एक्शन टेकन अकाउंटिंग सर 21 अगस्त 2025 को हमने रिलीज किया सर, इट इज ड्यू टू मैनी कंप्लेंट्स रिसीव्ड बाय दिस ऑफिस रिपीटेडली। लोकल पीपल्स ने रिपीटेडली मेरे ऑफिस को बार बार कंप्लेंट्स दी कि देयर आर सम इरेगुलरिटीज और देयर वर सम एप्रीहेंशंस ऑफ द लोकल पीपल्स आल्सो। आई विल सर जस्ट रीड कि व्हाई दिस ऑर्डर वाज इशूड, बिकॉज दिस इज स्ट्रिक्टली ड्यू टू वायलेशन ऑफ टर्म्स ऑफ अलॉटमेंट ऑफ द ऑर्डर सर। जो अलॉटमेंट ऑर्डर 652 रेवेन्यू ऑफ 2018 डेटेड 5/5/2018 को जो इशू किया गया था, उसमें ये साफ लिखा था कि ये ऑर्डर कंस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी के लिए है। जो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन थी लीज होने की या अलॉटमेंट ऑर्डर की, उसका फर्स्ट पॉइंट था द लीजी शैल नॉट सबलेट द लैंड और पार्ट देयर ऑफ विदाउट एक्सप्रेस परमिशन फ्रॉम द लेसर। Second point था the land shall be used for the purpose for which it is allotted. The purpose was construction of university, but it was not followed, and there is no university that has been set up on the allotted land till date. थर्ड पॉइंट जो था वो था तहसीलदार ले विल हैंड ओवर द पोजीशन ऑफ द लैंड टू द कंसर्न आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द लीज डीड अग्रीमेंट, वेयर एज नो लीज एग्रीमेंट हैज बीन एक्सिक्यूटेड इन रिस्पेक्टेड ऑफ द अलॉटमेंट लैंड एंड नो फॉर्मल हैंडिंग ओवर एंड टेकिंग ओवर ऑफ द सेड लैंड हैज टेकन प्लेस थ्रू तहसीलदार ले टिल डेट। फोर्थ पॉइंट जो था वो था द अलॉटी शैल एग्जीक्यूट द लीज डीड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द ऑर्डर। द डेट ऑफ द ऑर्डर वाज 5 May 2018, फेलिंग विच द अलॉटमेंट ऑर्डर शैल बी डीम्ड टू बी कैंसिल्ड। जो डीम्ड टू बी कैंसिल्ड इज एन ऑटोमेटिक क्लॉज जो अपने आप ही प्रोविजन में आ जाता है। तो जो 5/5/2019 को ये खुद में खुद ऑटोमेटिकली ये वाला प्रोविजन जो फोर्थ पॉइंट था वो अपने आप ही डीम्ड लिखा गया था। तो इसलिए हमने इसको फिफ्थ पॉइंट जो था द लैंड शेल एस्चीट टू द स्टेट दैट इज LHDC ले इन केस ऑफ एनी वायलेशन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द लीज डीड। सो इस लैंड को हमने सर फिर वापस एस्चीट किया स्टेट को जो है LHDC ले, और हमने ऑर्डर किया कि तहसीलदार ले शैल रिमूव ऑल दी एनकम्बरेंस फ्रॉम द सेड पीस ऑफ द स्टेट लैंड। सर इसी के साथ सर इन कंटिन्यूएशन व्हाट यू सेड आल्सो कि हमारा जो मिशन इंडस क्लीन अप था जो हमारे LHDC ले के CEC श्री ताशी गालसन जी ने और हमारे ऑनरेबल CS श्री पवन कोतवाल सर ने जो किया था, उसमें हमारे नंबरदार हमारे जो गोपा जितने भी थे उनका हमें फुल सपोर्ट और हमें काफी उनकी गाइडेंस मिली थी कि कैसे हम इन कामों को कर सकते हैं। बाकी खाली इस मिशन इंडस क्लीन अप ही नहीं, जो हमारा DSRB का रिक्रूटमेंट चल रहा है या और भी कोई डिस्ट्रिक्ट का ले का चलता है कोई भी स्कीम या प्रोविजंस, उसमें हमारे गोबाज नंबरदार हमें फुल हार्टेड सपोर्ट करते हैं। तो माई रिक्वेस्ट टू नंबरदार्स वुड बी अगेन टू गाइड द विलेजेस एंड हेल्प द रेवेन्यू ऑफिशियल, जो भी ड्यूटी नंबरदारी एक्ट और नंबरदारी रूल्स में लिखी गई है सर। ठीक है, थैंक यू।